हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम प्लस 2 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा लास्ट चल रहा है, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और इसमें सिलेबस भी है। एक ऑप्शन रह जाएगा, कल नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव टू डू फॉर द बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम, मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर model and chapter wise important questions for the board exam we have to do. Okay, now syllabus will be complete. Now this question, miscellaneous exercise, last exercise, probability of the chapter, probability 13 chapter. After that full syllabus will be completed of plus 2, and then board exam important question chapter wise we have to do, expected questions and sure short also we have to do. Okay, now you see question 8. What is question 8? If each element of a second order determinant is either 0 or 1. अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 2/2, 2 रो 2 कॉलम. तो all elements will be 4 entry in one determinant. How many entry? How many elements will be there in 2/2 order determinant? 4 entry only. 2/2, 2 row and 2 column. Okay, then 4 element will be there in one determinant. Now here saying with the help of 0 and 1. So these two digits we have to use all 0 0. Okay, 0 0 and 1 repeated. ओके, एक 0 एक 1, तो दो फर्स्ट प्लेस को फुल करने के लिए 2 और फिर फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस. ठीक है, तो 2 एंट्री है और कितनी है? 4 प्लेस भरने हैं इनसे. ओके, तो 4 प्लेस भरने के लिए, एक प्लेस को भरने के लिए कितने एलिमेंट हमारे पास? 2 हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है. तो उस प्लेस के फिल करने का परमुटेशन. ओके, परमुटेशन वी हैव टू फाइंड ऑफ द 4 प्लेस एट ए टाइम. वी हैव टू फिल बाय द 2 एलिमेंट 0 एंड 1. ओके, तो 4 प्लेस, तो परमुटेशन सॉल्यूशन, यूज परमुटेशन, यूज परमुटेशन. रिपीटेशन इज अलाउड क्योंकि 4 एंट्री होनी. हर एक में 0 और 1 जरूर आना चाहिए. परमुटेशन, ठीक है, यूज परमुटेशन. व्हाट विल कम? टोटल प्लेस 4 प्लेस in one determinant. How many place? 4. These are 4 places and 1 place full with the help of the by 2 elements 0 and 1. तो ये 2 possibility to fill this place. 0 आ सकता है या 1 इस पर. फिर रिपीट हो रहा, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, रिपीटेशन इज देयर. Then this will be by the multiplication permutation 2 into 2 into 2 into 2. This will be here 16 determinants. All determinants 16 possible by the entry 0 and 1. 2/2 order means 4 element in that determinant. So 16 determinants are there. Total determinant. Okay, total determinant will be equal to 16. and इनमें पॉजिटिव वैल्यू वाले, what is the probability that the value of the determinant is positive? तो favorable, how many determinant will be there such that whose determinant positive? तो question arise that positive value
positive value determinant, positive valued determinant, valued determinant. Okay, understand what, how many will be there? Determinant, how many will be there? Number of positive values determinant, how many will be there? This I am giving example 1 0 0 1. एक तो डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगा, एक्सपेंड करो अलोंग फर्स्ट रो 1 into this cancel and this 1 remainder, तो 1 into 1 1. okay, this only positive. second 1 और यहां पर 1 कर दें, यहां पर 0 कर दें, यहां 1. this determinant also positive value because you check first row along first row and second row along first element, column and row cancel, so 1 into this 1 into 1 1, and third will be this 1 and यहाँ पर आप 1 कर सकते हैं और यहाँ पर 0 आ जाए और this is 1. this determinant also here in these 16, these are 3 which will be positive, other will not be positive. if all 0 then 0, all 1 then 1, we can't take that. okay, if 0 यहाँ है आगे भी 0 जाएगा, ठीक है, सब जगह 0 हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर ये 3 ही बनेंगे आपके फेवरेबल इन दीज 16. तो नाउ सो रिक्वायर्ड probability understand probability will be equal to favorable determinant upon total determinant. favorable determinant divided by total determinant. Then favorable number of determinants, this, how many these? 1 2 3. So 3 are the favorable out of 16, total 16 these by the permutation method. okay, 2 entries are there at the 4 places, 4 because 4 elements are there in one determinant. okay, so these 16 determinant, answer 3 upon 16. okay, important question this. Now next also important, these all are important question, last questions here miscellaneous, be careful. next question. hello students, next question आपका question number 9. an electronics assembly consists of two subsystems. दो सबसिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एक असेंबली में, से ए एंड बी. वो सब सिस्टम जो है ए एंड बी अलग अलग सिस्टम है, दोनों इंडिपेंडेंट है दोनों. ओके, फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर the following probabilities are assumed to be known. यानी ये एज्यूम कर लिया कि प्रीवियस टेस्ट से जो ये प्रोबेबिलिटी है ये गिवन है, एज नॉन मीन्स जानते हैं हम क्या गिवन. ए फेल्स, ए जो है सिस्टम वो फेल्स होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2.
probability of B fails alone 0.15, probability A and B fails 0.15. Evaluate the following probabilities. फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स कंडीशनली बी हैज फेल्ड, यानी बी अकर्ड यानी बी फेल्ड है, बी फेल्स है, देन उसके कंडीशन में हमें ए फेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. एंड सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन. ओके, तो नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि फर्स्ट पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी ए फेल्स कंडीशन प्रोबेबिलिटी है बी हैज फेल्ड, तो बी फेल्स की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए. फॉर्मूला एंड ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, ये ए इंटरसेक्शन बी फेल्स दोनों हमारे पास है. तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स कंडीशन B has failed, B has failed कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि मतलब A एंड B फेल्स, A एंड B फेल्स A and B fails intersection probability, intersection हो गया, and means intersection upon probability of B fails. Understand? Now this given here A and B fails, मतलब A intersection B fails probability given, so A intersection B fails probability given, but B fails we have to find. So B fails alone given and B fails we have to find. So B fails alone according to question. What? B fails alone हमारे पास है 0.15, तो B fails alone B fails alone will be equal to B fails alone will be equal to B fails minus B fails minus intersection minus B and A fails, B and A fails, B and A fails. According to the set theory, by the Venn diagram we can check this. Okay, clear? जैसे A ये है, B ये है, फेल्स वाले फेल्स, A फेल्स B फेल्स, A फेल्स B फेल्स, ठीक है. तो B फेल्स एलोन का मतलब ये, हमें B फेल्स एलोन का मतलब ये पार्ट B माइनस A, B फेल्स एलोन का मतलब B माइनस A. अंडरस्टैंड? तो B माइनस A मीन्स इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, तो B माइनस B इंटरसेक्शन A. ओके, दैट्स व्हाई दिस फेल्स का मैंने डायग्राम बना के आपको बताया. तो दिस फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट. नाउ B फेल्स अलोन हमें दिया हुआ है कितना, 0.15 प्रोबेबिलिटी. अब इन पर प्रोबेबिलिटी लगा दिया मैंने सब पर, ये सेट थ्योरी थी. प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस,
नाउ दिस हमारे पास है 0.15, बी फेल्स अलोन गिवन है हमें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स हमें चाहिए, बी फेल्स, ओके, प्रोबेबिलिटी बी फेल्स हमें चाहिए, और ये माइनस ये गिवन है हमारे पास 0.15, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है दिस 0.15, तो बोथ गिवन पुट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स, so probability of B fails, अंडरस्टैंड, ये माइनस उधर से इधर प्लस हो जाएगा आकर लेफ्ट हैंड साइड, तो 0.15 प्लस 0.15 ऐड होकर कितना बन गया 0.30, ओके, इधर ये माइनस से प्लस हो गया, सो दिस वी गॉट हेयर, ओके, पुट हेयर दिस, देन प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ये 0.15 डिवाइड बाय B फेल्स, B फेल्स की प्रोबेबिलिटी 0.30, पुट दिस हियर 0.30, then decimal removed, then this is 1/2, clear, 15 2 जा 30 is equal to 0.5, डेसिमल में अगर देना है आंसर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर, व्हाट A fails condition B has failed, clear this, okay, now second part, probability A fails alone, second part, probability A fails alone, now second part, yes, clear, yes, probability, second part, probability of this A fails, A fails alone, probability A fails alone, ध्यान दें, सेम अभी बताया आपको, A fails alone, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A fails माइनस इंटरसेक्शन, A fails alone means probability of A fails minus probability of, by the set theory, A and B fails, इंटरसेक्शन माइनस हो गया, ओके, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, डन, नाउ दिस A fails alone, A fails हमें दिया हुआ है, ये पुट कर दिया, A fails गिवन है 0.2, A fails 0.2 minus this also given 0.15, तो माइनस किया 0.20 कर लिया एंड 15, दिस इज 0.05, so this is the required probability A fails alone, A fails alone, clear, A fails alone, अकेला, यानी बी का कोई पार्ट उसमें नहीं है, तो इसलिए इंटरसेक्शन फिनिश हो गया, माइनस हो गया, डन, आंसर।
Very important question this. Solution is also important. Then next question similarly. Yes, beta. Next question. Next question is question 10. Bag first contains 3 red and 4 black balls. And bag second contains 4 red and 5 black balls. दो बैग हैं, दोनों में रेड एंड ब्लैक बॉल्स आर देयर. वन बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड. अब बैग फर्स्ट से बैग सेकंड में एक बॉल ट्रांसफर की एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड. फिर एट रैंडम एक बॉल सेकंड बैग से ड्रॉ की, बाद में पहले एक बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ट्रांसफर कर दी गई. तो उसकी possibility to be transferred from the first bag एक बॉल एट रेंडमली, तो वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है. तो दो पार्ट बन जाएंगे इसके यहाँ, E1 एंड E2. वन पार्ट इज लेट अस सपोज द ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग टू द सेकंड इज रेड बॉल. E2 let the transfer ball from the first bag to the second bag is black ball. And then one ball is drawn from the second bag at randomly and it is found to be that ball is red ball, red in color. So then it will be the set A. So find the probability that the transferred ball is black ball. So find the probability of the transferred ball was black ball by the Bayes theorem. E2 की probability when A already occurred the ball from second bag, that is the red ball. Now solution of this, let assume किया, assume that क्या E1 such that transfer ball transferred ball from bag first to second, from bag first to second, from bag first to second. Let transfer ball from bag first to second is red ball. Okay, is red. Okay, second माना E2 such that transferred ball from bag first to second is black ball. भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रेड आएगी या ब्लैक. जो एक बॉल लिया हमने, तो एक बॉल फर्स्ट बैग से ली तो उनकी प्रोबेबिलिटी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बन गया, रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग. रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है, 3. तो 3 रेड बॉल हैं. टोटल कितना है फर्स्ट बैग में, 4 ब्लैक हैं, तो 4 + 3 7, तो 3/7. एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स फर्स्ट बैग में से जो बॉल ली वो ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक बॉल कितनी है, 4, तो 4 टोटल 7. तो these are the probability of from first bag red ball and black ball, E1 and E2. And easy
एंड ए, जो ए सेट है वो क्या है कि एक बॉल ट्रांसफर के बाद सेकंड बैग में से एट रैंडम ड्रॉ की गई फ्रॉम सेकंड बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड. A ball drawn from second bag, a ball is drawn from second bag after transfer, है ना, after transfer. Clear? Question clear? After transferred. Okay? Is red. Sorry. कौन सी? हाँ, यस, रेड इन कलर. Is red ball. That random आई वो रेड बॉल आई. Is red. A ball is drawn from second bag after transferred. Is red. तो अब हम क्या कहेंगे? Use here probability of that सेकेंड बैग से बॉल ड्रॉ की गई ट्रांसफर के बाद फर्स्ट से सेकेंड में, तो ए कंडीशन व्हेन जो बॉल ड्रॉ हुई वो इट इज गिवन दैट कि वो बॉल जो है रेड बॉल है और रेड ही है, हमने ए, तो सेकेंड बैग से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन फ्रॉम द फर्स्ट बैग ट्रांसफर बॉल इज रेड बॉल, E1 पर कंडीशन. तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब ट्रांसफर होगी रेड बॉल एक यहां से, तो इसमें रेड बॉल एक बढ़ गई, तो रेड कितनी हो गई यहां पर 5 रेड हो गई. टोटल कितनी हो गई 10, 9 की जगह 10 हो गई. तो रेड बॉल की कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई रेड बॉल होने की, रेड ही ट्रांसफर हुई, तो 5/10 is equal to 2, 1/2. Important this बिकॉज वहां इंक्रीज हो गई एक बॉल और वो रेड इंक्रीज हुई बिकॉज ई में रेड बॉल की है ये. तो दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेट यानी सेकेंड बॉल से ड्रॉ हुई बॉल वो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन फ्रॉम द फर्स्ट बैग से सेकेंड में जो ट्रांसफर हुई बॉल वो ब्लैक बॉल है E2. कंडीशन इज E2 पर लग गई, E2 है हमारी ये. तो देन जब वो E2 से ट्रांसफर हुई उधर, सॉरी E1 फर्स्ट से ट्रांसफर हुई सेकंड बैग में, वो E2 है ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल एक बढ़ेगी वहां और लेनी हमें रेड बॉल की प्रॉपर्टी. तो रेड बॉल सेकंड बैग में रेड बॉल 4 है तो 4 ही रहेंगी एंड ब्लैक बॉल बढ़ेगी वहां 6, तो टोटल 10. तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन फ्रॉम द फर्स्ट बैग ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक बॉल इज गिवन, देन कंडीशन ऑन दैट. तो दिस प्रोबेबिलिटी यू हैव हियर, दिस इज 2 to the 4, 2 5 the 10, 2/5. क्लियर? तो यूज बेस थ्योरम, using Bayes theorem, ओके. क्या है बेस थ्योरम? किसी पार्टीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, पार्टीजन कहें कि चाहिए, उसने कहा कि वो ट्रांसफर बॉल ब्लैक बॉल है, ये बताओ उसकी ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल है E2 पार्ट, यानी E2 पार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ. जो ट्रांसफर हुई वो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी.
तो E2 condition on A, Bayes theorem, then probability of E2 into probability of A condition on E2 divided by total probability. Total probability का मतलब probability of E1 into probability of A condition on E1 plus probability of E2 into probability of A condition on E2. These two partitions है तो total of this by Bayes theorem. This is Bayes theorem formula. Then putting the value. So property of E2 हमारा कितनी है 4/7. E2 4/7 into A कंडीशन E2 कितना है A कंडीशन E2 2/5 होल डिवाइड बाय प्रॉपर्टी E1 कितना है 3/7 इंटू ए कंडीशन E1 कितनी है 1/2 we calculated above. Put these all values in the formula and solve. Plus probability E2 E2 4/7 into A condition E2 2/5. Simplify. Okay. 8/35 whole divided by 7 2 जा 14 7 5 जा 35 35 and 14 LCM 7 2 जा 14 7 5 जा 35 तो 7 2 जा 14 14 into 5 70 LCM in denominator. Okay, then 14 in divide to 70 14 5 जा okay 70 तो 5 into 3 1 जा 3 5 3 जा 15 एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई प्लस एलसीएम 70 है 7 5 जा 35 35 डिवाइड टू 70 2 जा and 2 multiply into 8 4 2 जा 8 2 जा 16 then simplify reciprocal then 8 upon 35 and reciprocal of the fraction then 70 upon 15 plus 16 31 okay then 70 and 35 cancel 2 ja and 8 2 ja 16 upon 31. This is your answer. So required probability is equal to 16/31. ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो ट्रांसफर बॉल थी वो ब्लैक बॉल है ये होने की प्रोबेबिलिटी 16/31. Sentence we can write in the end. Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. उन बच्चों को जरूर भेजें जिनके
जिन पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हो 10th 11th 12th में, या कोई डायरेक्ट आपका स्टूडेंट फ्रेंड्स है 10th 11th 12th में, उनको शेयर करो और उनको ये गाइड करना है कि जिस क्लास का भी वीडियो देखना चाहते हैं उसी क्लास का लिंक खोलें और सारी वीडियो, सारा सिलेबस, एवरीथिंग, एवरी एनसीईआरटी फुल सिलेबस इन दैट लिंक यू विल गेट। सारी वीडियो मिल जाएंगी। 10th क्लास का एक लिंक है, एक लिंक 11th क्लास का है, एक 12th क्लास का है, एंड उसी एक ही लिंक में उस क्लास की सारी वीडियो, एनसीईआरटी full syllabus with concept cleared and the proof of all the formulas, why, how this formula, what is the meaning of this formula, where are the using in the daily life, what is requirement, why requirement of this formula in the mathematics, everything explained. So you will see, but आपको लिंक तभी खुलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। उन्हें ये गाइड करना जरूरी है कि आप पहले सब्सक्राइब कर लो वीडियो खोलकर, और सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाओ वीडियो के, और वहां पर लिंक जो भी आप क्लास का देखना चाहते हैं वीडियो, उस क्लास के लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपको खुल जाएगा, और उसके बाद सारी वीडियो उस क्लास की मिल जाएंगी। जो भी चैप्टर आपको देखना हो चैप्टर आप देख सकते हैं, और फिर उनको गाइड करना कि अपने फ्रेंड को भी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेंड को भेजें आगे, जिससे कि उनको बेनिफिट हो जो बेचारे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। मेरी ये इच्छा है कि उन बच्चों तक जरूर वीडियो पहुंचे जो बच्चे ट्यूशन में नहीं जा रहे हैं। इसलिए मेरी एक से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, उन्हें गाइड करें कि फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड देन वॉच एवरीथिंग विच यू वांट। जो भी क्लास की वीडियो चाहते हैं वो वीडियो खुल जाएगी। ओके, और उन्हें गाइड करना कि आगे भी फ्रेंड टू फ्रेंड सेम गाइड कर दें कि सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन वीडियो खुल जाएगी, अदरवाइज नहीं खुलेगी। एंड वॉच करें और फिर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।